Hello all, welcome to the channel. This is Astha, and guys, in this video we're going to discuss all the doubts, all the questions that you must be having during your online assessment test of Infosys company. That is the first round of interview. Guys, tomorrow 13th of June, most of the candidates are having their first round of online assessment test of Infosys recruitment process, and I'm going to give you all the possible answers what you need to do during your online assessment test of Infosys company. If you face any technical issues, if you face any network issues, if your login credentials are not working, then what you need to do. If your webcam is not getting enabled, then in that condition what you need to do. All the possible conditions you may face during this examination. That along with that, I'm going to give you all the details how you need to attend this test. Okay, so all the possible doubts and questions we're going to discuss in this video. So guys, do not miss this video and please do watch completely so that you will not have any doubts related to your examination and you'll be confident during your exam. Okay, so guys, as previously also I have discussed a detail about how the test pattern of these this examination. I have had a complete discussion how your test will going to be and how many questions you'll be having, what durations you'll be having, section wise. All 5 sections I have already discussed in this video. I'll give you link in the description box. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, just go and do watch this video guys. This is really helpful to all of you. Along with that, I have already shared all the guidelines that what you need to do and you don't have to do during your examination, how you need to check your system requirements. That also I have already discussed in my previous video, so I'll give you link and you really watch that video. That will really helpful to all of you. Along with that, I have already shared so many latest Infosys interview experiences of the selected candidates guys who will be going to join from 14th of June. So you can do one thing, do watch those videos also. That will really help you out to clear your online test, बिकॉज उसमें हमने डिस्कस किया है डिटेल में कैसे आपका ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न होने वाला है, कौन से सेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, ईजी हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं. All the things I have discussed in all those interview experiences videos. Along with that, I have already shared the complete important topics also in my previous videos. So guys, complete playlist आपको मिल जाएगी Infosys की. Go and do watch that playlist. It hardly takes you half an hour, but you'll get most important information about this Infosys online test and the drive. So now we'll see some questions जो आपके लिए बहुत relevant होने वाले हैं कल की examination में. Guys, सबसे पहले point है कि आपका negative marking होने वाला है या नहीं होने वाला है. So guys, it's clear you don't have any negative marking. Guys, इसका benefit आपको ज़रूर लेना है. Just attempt all the questions. Okay, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ होता है, सभी सेक्शंस का पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है. टेस्ट पैटर्न वाले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप एक बार देख लेना. हर सेक्शन में आपको पर्टिकुलर टाइम मिला हुआ है एंड एक टाइम पर आपका एक ही क्वेश्चन आपको विजिबल होगा. ओके, सो यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. ओके, अगर आपको आंसर आता है, ट्राई टू चूज द करेक्ट आंसर. बट अगर इन केस यू डोंट हैव एनी आइडिया, जस्ट डू क्लिक एनी पॉसिबल आंसर हो गाइज, बिकॉज इन केस अगर वो आंसर आपका करेक्ट हो जाता है तो यू विल गेट प्लस पॉइंट है. ओके, सो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, नो डाउट इन दैट. ओके, एंड रिविजिट आप नहीं कर सकते हैं क्वेश्चंस को गाइज. तो प्लीज़ जिस क्वेश्चन को आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसे आप अटेम्प्ट करके ही आगे बढ़िएगा. ओके, now the second thing is what is the procedure to take the test. Okay, आपको टेस्ट स्टार्ट कैसे करना है. सो फर्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट टू बिगिन द टेस्ट. ओके, उसके पहले आप सभी इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर लेना केयरफुली. देन यू नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट. आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही आप बिगिन करेंगे टेस्ट को, यू विल सी अ लिस्ट ऑफ ऑल द सेक्शंस. ओके, सभी सेक्शंस की लिस्ट आपको मिल जाएगी. आपको क्लिक करना है अटेम्प्ट सेक्शन पर. ओके, जैसे ही आप अटेम्प्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, आपका वो सेक्शन इनेबल हो जाएगा. यू विल सी वन क्वेश्चन एट अ टाइम विथ आंसर ऑप्शंस और ब्लैंक स्पेस फॉर योर कंट्रीब्यूशन एज रिक्वायर्ड. ओके, तो आपके पास सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन ही रहेगा एक टाइम पर एंड उसके पॉसिबल आंसर्स रहेंगे एंड एक रफ स्पेस रहेगा आपके रफ वर्क के लिए. ओके, सो दिस इज दी प्रोसीजर जिस तरह से आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है. ओके, नाउ I am unable to start the test because now guys first take care of this thing कि जैसे ही आपको आज मेल मिला होगा. ओके, जिस मेल में आपके पास टेस्ट लिंक की डिटेल्स आई होंगी, आपकी लॉगिन आईडी एंड क्रेडेंशियल्स, यूज़र नेम आपका वही रहेगा जो अपने ईमेल आईडी पर आपको मेल आया है. जिस ईमेल आईडी पर आपको इन्फोसिस से मेल आया है फॉर योर क्रेडेंशियल्स एंड योर टेस्ट डिटेल्स,
वही आपका यूज़र आईडी है एंड पासवर्ड आपको सेट करना होगा। ओके जो भी पासवर्ड आप सेट कर रहे हैं उसे कहीं नोट करके रख लीजिए ताकि आप भूलें नहीं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास वो पासवर्ड नहीं होगा तो आप फिर से लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ओके टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो जस्ट नोट डाउन दैट पासवर्ड समवेयर। ओके देन नेक्स्ट थिंग, आपको सिस्टम चेक करके रख लेना है पहले से। वॉट एवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम यू हैव टू चेक इन आज ही आप चेक कर लीजिए, सो दैट जब कल आप टेस्ट देंगे आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट जब चेक की जाएगी तो आपका सब ग्रीन टिक हो जाए। ओके नाउ द सेकंड थिंग इज, अगर आपका वेबकैम इनेबल नहीं होता है, ओके इफ़ योर वेबकैम इज़ नॉट गेटिंग डिटेक्टेड, इन दैट केस आप टेस्ट स्टार्ट कैसे करेंगे? ओके सो प्लीज़ चेक इज द वेबकैम इज इन वर्किंग कंडीशन, इज नॉट इन यूज बाय एनी अदर एप्लीकेशन अदर देन द ब्राउजर। यू कैन चेक दी वर्किंग ऑफ योर वेबकैम लाइव। यहाँ पर एक वेबसाइट आपको, एक लिंक आपको दिया हुआ है, इस लिंक पर आप क्लिक करके अपने वेबकैम का इनेबल है या नहीं, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, ये चेक कर सकते हैं। प्लीज़ इंश्योर द परमिशंस फॉर वेबकैम इन द ब्राउजर सेटिंग्स आर इनेबल्ड। आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपकी जो भी वेबकैम की परमिशंस है वो इनेबल्ड हैं या नहीं है आपके ब्राउजर में। ओके देन यू मे ऑल्सो चेक वेदर पॉपअप इज अलाउड इन क्रोम। Also clear browser cache in Chrome and also access the browser in Incognito mode. Now this condition happens with you कि आपका जो login credentials है वो invalid बताता है, तब आपको क्या करना है? Guys you don't have to waste any time there। आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपने जो email ID एंटर किया है वो करेक्ट है कि नहीं। वो वही email ID होना चाहिए जिस पर आपको ये मेल आया है, टेस्ट लिंक की डिटेल्स आई हैं। ओके देन सेकेंड चीज़, आपने जो पासवर्ड एंटर कर रहे हैं वो करेक्ट एंटर कर रहे हैं कि नहीं, वो आप चेक कर लीजिए। फिर भी अगर आपका नहीं होता है लॉगिन, इन दैट केस यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर दिया हुआ है एंड एक ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है। आप जैसे ही आपका इनवैलिड शो करता है एंड आप सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप तुरंत इन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके नाउ द सेकंड थिंग इज कि माय फेस इज नॉट बीइंग डिटेक्टेड बाय द वेबकैम व्हेन आई स्टार्ट द टेस्ट। अगर आपका वेबकैम आपका फेस डिटेक्ट नहीं कर रहा है जब आप टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको क्या करना है? तो दीदी आपको सबसे पहले अपने कमरे की लाइट्स चेक कर लेनी है। आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए वेबकैम में। आपका वेबकैम फंक्शनल कर रहा है नहीं प्रॉपरली, ये चेक कर लीजिए। ओके देन उसके बाद आपको आंसर सबमिट कैसे करना है? तो गाइस यू नीड टू मेक श्योर बाय चेकिंग द एप्रोप्रिएट रेडियो बटन और चेक बॉक्स और बाय फिलिंग अप द ब्लैंक एंड क्लिक ऑन सबमिट टू रिकॉर्ड योर आंसर। ओके आपको जो भी आंसर आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट द आंसर पर क्लिक करना है। The next important doubt is कि can I see the next question before submitting the answer for the question on the screen? No guys, you cannot switch between questions. Okay, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको submit an answer for the question that has been presented। जो भी question आपके सामने है आपको उसका answer select करना है, then only you will be able to go for the next question. ओके और अगर एक बार आप क्वेश्चन से मूव कर गए तो आप उसे रिविजिट नहीं कर पाएंगे। सो इन दैट केस आपको जो भी आंसर आता है आप उसे सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को रिविजिट नहीं कर पाएंगे। तो एट अ टाइम आपको एक ही क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा। ओके सो यू कांट स्विच बिटवीन सेक्शंस, यू कांट स्विच बिटवीन क्वेश्चंस ऑल्सो। Okay now can I go back and change my answer? No guys, you cannot you can't go and change your answer। आपने जो भी आंसर एक बार सबमिट कर दिया आपका वही फाइनल आंसर रहेगा, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है टू रिविजिट दैट आंसर। ओके नाउ हाउ शुड आई अटेम्प्ट ईच सेक्शन? तो आपको हर सेक्शन को स्पेसिफिक ड्यूरेशन में, हर सेक्शन के सामने ड्यूरेशन दी हुई है, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आपको उनको रीड आउट करना है एंड देन आपको उस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। और अगर आपका टाइम बच जाता है, इन केस कि मेरा एप्टीट्यूड में टाइम बच गया है तो मैं उस टाइम को नेक्स्ट सेक्शन में यूज़ कर लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपके लिए जिस सेक्शन के लिए जितना टाइम दिया है आपको उतना ही टाइम मिलेगा उस सेक्शन में, आपको उतने टाइम में अपना सेक्शन कंप्लीट करना है। हाउ विल आई रिसीव द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच सेक्शन? हर सेक्शन के पहले आपके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगे जिसके लिए आपको 2 मिनट्स का टाइम मिलेगा। उस ड्यूरेशन में आप अपना इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर सकते हैं। ना आपको सेक्शन को सबमिट कैसे करना है? सो गाइज आप पूरा सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है एंड फिनिश सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये करेंगे आपका वो सेक्शन खत्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट सेक्शन आपको शो हो जाएगा। ओके और वॉट एवर आंसर्स यू हैव आंसर्ड इन दैट सेक्शन सो फार विल ऑटोमेटिकली गेट सबमिटेड। ओके नाउ अगर जैसा कि आप बताया मैंने कि अगर किसी भी इशू से आपका टाइमर जो है फ्रीज हो जाता है इन केस ऑफ सिस्टम रिलेटेड इश्यूज और इंटरनेट डिस्ट्रप्शन, तो क्या होगा? नो, द टाइमर विल कंटिन्यू टू रन टिल यू फिनिश द टेस्ट। ओके इन केस ऑफ एनी इंटरप्शन व्हेन यू रिज्यूम द टेस्ट यू विल हैव टू कंप्लीट द सेक्शन इन द रिमेनिंग टाइम। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी नेटवर्क सिस्टम रिलेटेड इशू हो रहा है, इन दैट केस आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा गाइस। यू हैव टू कंप्लीट योर टेस्ट इन द गिवन टाइम।
बेटर कि आप अपना इंटरनेट कनेक्शन एंड सभी पॉसिबिलिटीज़ पहले ही चेक कर लें। देन आप सेक्शन भी रिविजिट नहीं कर सकते हैं गाइज, आपको पर्टिकुलर सेक्शन गिवन टाइम में सॉल्व करना है। देन अगर आपका ब्राउज़र हंग हो जाता है या फिर अनरिस्पॉन्सिव दिखाता है ड्यूरिंग द टेस्ट, तो उस कंडीशन में आपको अपने ब्राउज़र को क्लोज करना है एंड इंश्योर देयर इज़ नो प्रोसेसिंग इन प्रोग्रेस ऑन द सिस्टम। रीलॉन्च द ब्राउज़र एंड लॉग इन अगेन। आप फिर से प्लीज़ गाइज, अगर आपके साथ ये होता है कि जो आंसर आप सबमिट कर रहे हैं उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो प्लीज़ अपना इंटरनेट कनेक्शन आप चेक कर लीजिएगा, पेज को रिफ्रेश कर दीजिएगा एंड लॉग इन अगेन टू कंटिन्यू द टेस्ट। ओके, माई टेस्ट हैज़ बिकम अनरिस्पॉन्सिव एंड आई एम अनेबल टू इंटरैक्ट विद द ब्राउज़र। इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है, तो अगेन आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन वेरीफाई करना है, पेज को रिफ्रेश करना है एंड लॉग इन करना है। आई एम गेटिंग अ ब्लैंक स्क्रीन व्हेन आई एम सबमिटिंग अ क्वेश्चन। ओके, अगर आप क्वेश्चन सबमिट कर रहे हैं तो आपका ब्लैंक स्क्रीन शो हो रहा है, इन दैट केस अगेन आपको यही करना है, अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करना है, रिफ्रेश करना है पेज को एंड लॉग इन अगेन टू कंटिन्यू द टेस्ट। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिकॉज यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो जो भी कर रहे हैं आपको, जैसे ही इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो तुरंत आपको एक्शन लेना है। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस डिटेल्स विथ ऑल ऑफ यू. Once you're done with your test guys, you need to click on the submit and the answers whatever you have selected they get automatically submitted. Okay, in case अगर आप submit पर click नहीं कर रहे हैं, in that case all your answers submitted so far will automatically get submitted once your time get elapsed. Okay, so do I close the browser after I complete the test and submit the test? Yes, you have to close that browser, no problem in that. And one more thing, if you have any query related to the help desk, if you want an assistance from the Infosys help desk side, you will have a toll free number here, you will have a email ID also, just उसे आप रेडी रखिएगा कहीं पर so that आप तुरंत ही उसे यूज़ कर पाएँ। ओके, टोल फ्री नंबर एंड ईमेल आईडी पहले से ही आप निकाल कर कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा गाइज, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी टेक्निकल इश्यूज़ होता है तुरंत आपको एक्शन लेना है। अगर आप चाहते हैं ये सभी FAQ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो प्रीवियस मेल आपके पास आया था उस मेल में आपको अटैचमेंट में FAQ क्वेश्चंस के नाम से ये सभी आंसर्स मिल जाएंगे। इन्हें अच्छे से रीड आउट कर लीजिए सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम टेस्ट के दौरान ना हो। ऑल द बेस्ट गाइज एंड प्लीज़ बी रेडी विथ ऑल योर सिस्टम चेक्स एंड सभी रिक्वायरमेंट्स आप पहले ही चेक कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट. Go ahead and please read out all the instructions carefully and then you have to attend your test. Okay, all the best from my side. We'll meet in another video with new update. Thank you.